پس یوحنا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کی خواہش یہ ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، اور چونکہ گناہ خدا کی شریعت کو توڑنا ہے، اس لیے وہ دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کی خواہش یہ ہے کہ ہم خدا کی شریعت پر عمل کریں۔ لیکن اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والا موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا گناہ فضل کے وسیلہ سے ڈھانپ دیا جاتا ہے یسوع مسیح کی راست بازی کے ذریعے۔ تاہم یہ فضل انہیں دیا جاتا ہے جو خدا کے احکام کو ماننے کی خواہش رکھتے ہیں، تاکہ وہ انہی احکام پر چلیں جن پر ہمارا مسیح چلا تھا۔ میرا نام پاسٹر شہزاد چارلز ہے۔ کتابیں پڑھنا میرا شوق ہے۔ میں پاسٹر شہزاد چارلز بائبل انسٹیٹیوٹ کے اس چینل پر کتابیں، کہانیاں، تبصرے، آرٹیکلز وغیرہ پڑھتا ہوں۔ مطالعہ کے سلسلہ میں آج ہمارا 6واں مطالعہ ہے۔ کتاب کا عنوان پولن پیراڈاکس، وچلا پال پولوس کے تضادات، کون سی شریعت پولوس؟ اشاعت 119 ministries.com، ترجمہ چیٹ جی پی ٹی، تحقیق و تالیف پاسٹر شہزاد چارلز۔ شالوم بیشم یشویہ ہامشاخ، ادارہ اشاعت 119 ministries.com، ترجمہ چیٹ جی پی ٹی، تحقیق و تالیف پاسٹر شہزاد چارلز۔ عنوان: کون سی شریعت پولس رسول کون سی شریعت کی بات کر رہا ہے؟ ناظرین کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ حصہ اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے۔ دوسرے حصے کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ پہلے حصے کو ضرور دیکھیں۔ اسی لیے ہمیں ہر چیز کو اس کے کلام کے مطابق پرکھنا چاہیے، کیونکہ آخرکار ہم اپنے ایمان کے لیے خود جواب دہ ہوں گے، نہ کہ دوسروں کے ایمان کے لیے۔ اگر خدا کا کلام بدل سکتا ہے تو پھر وہ چٹان نہیں رہا بلکہ ریت بن گیا ہے جو ہر وقت بدلتی رہتی ہے۔ متی 7:24-27 آیت۔ پس جو کوئی میری ان باتوں کو سنتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقلمند آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا، اور مینہ برسا اور سیلاب آئے اور ہوائیں چلی اور اس گھر پر زور سے ٹکرائیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر تھی۔ اور جو کوئی میری ان باتوں کو سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس نادان آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور مینہ برسا اور سیلاب آئے اور ہوائیں چلی اور اس گھر سے ٹکرائیں، اور وہ گر گیا، اور اس کا گرنا بہت زبردست تھا۔ جب تک ہم اپنی تعلیمات کو خدا کے غیر متغیر کلام کی چٹان پر قائم نہ کریں، ہماری الہیات وقت کے بدلتے رجحانات کے سامنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یسوع نے اس تمثیل کی شروعات کیسے کی۔ پس جو کوئی میری ان باتوں کو سنتا ہے۔ کون سی باتیں؟ یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ یسوع نے دانا آدمی کی تمثیل ان باتوں کے فوراً بعد بیان کی جو اس نے پہلے کہیں۔ متی 7:24-27۔ اس دن ہر کوئی جو مجھ سے اے خداوند کہتا ہے، سمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، بلکہ وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بہت سے لوگ مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں کیے؟ تب میں ان سے صاف کہہ دوں گا، میں تمہیں کبھی نہیں جانتا تھا، میرے پاس سے چلے جاؤ اے بد کردارو۔ مروجہ رائے کے برخلاف خدا کا کلام تبدیل نہیں ہوتا، اور اسی کے نتیجے میں خدا کی شریعت بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ ہم نے پہلے 3 حصوں میں تفصیل سے یہ واضح کیا کہ خدا کی شریعت تبدیل نہیں ہوئی، لہذا ہم یہاں اس نقطے پر زیادہ بحث نہیں کریں گے۔ آگے ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ پولس اور خدا کی شریعت کے بارے میں جو عام الجھن پائی جاتی ہے، اس کا منظم طریقے سے جائزہ لیں اور ہر پہلو پر بات کریں۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں پولس کی سوچ کو سمجھنا ہوگا، یعنی پولس کو سمجھنا ہوگا۔ ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ پولس خدا کاف کی شریعت کے مقصد اور اس کے کردار کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ خدا کی شریعت گناہ کا تعارف اس طرح کرتی ہے۔ یرمیہ 44:23 آیت۔ چونکہ تم نے بخور جلائے اور خداوند کے خلاف گناہ کیا اور اس کی آواز کو نہ سنا اور نہ اس کی شریعت آئین اور شہادتوں پر چلے، سی لیے یہ مصیبت جیسی کہ اب ہے تم پر۔ حزقیل 18:21 آیت۔ لیکن اگر شریر اپنے تمام گناہوں سے جو اس نے کیے ہیں باز آئے اور میرے سب آئین پر چل کر جو جائز اور روا ہے عمل کرے، تو وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہ مرے گا۔ دانیئیل 9:11۔ ہاں، تمام بنی اسرائیل نے تیری شریعت کو توڑا اور برگشت اختیار کی تاکہ تیری آواز کے شنوا نہ ہوں، اس لیے وہ لعنت اور قسم جو خدا کے خادم موسیٰ کی توریت میں
मरकूम हैं हम पूरी हुई क्योंकि हम उसके गुनहगार हुए। यही खुदा के शरीयत का एक बुनियादी मकसद था जो पुलिस की नजर में भी था, गुनाह की पहचान करवाना। रोमियो 3 बाब 20 आयत, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके के हुजूर रास्तबाज नान ठहरेगा, इसलिए के शरीयत के विसला से तो गुनाह की पहचान होती है। रोमियो 7 बाब 7 आयत, पस हम क्या कहीं किया शरीयत गुनाह है, हरगिज़ नान, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती कि तो लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता। यूहन्ना भी यही तालीम देता है जो पुलिस ने दी। पहला यूहन्ना 3 बाब 4 आयत, जो कोई गुनाह करता है वो शर्रा की मुखालफत करता है और गुनाह शर्रा की मुखालफत ही है। पुलिस ये तालीम देता है कि तमाम इंसान खुदा के सामने इसकी शरीयत के तहत जवाबदेह है। इसका मतलब यह है खुदा की शरीयत के जरिए गुनाह की शनाख्त का एक खास मकसद है। जब ये हमें हमारे गुनाह से आगाह करता है तो ये हमारे खालिक के सामने हमारी मौजूदा हालत पर असर अंदाज होता है। वो कहता है कि हर मुंह बंद कर दिया जाएगा, यानी कोई भी शख्स अपने गुनाह खुदा की शरीयत को तोड़ने के बारे में अपना दिफा नहीं कर सकेगा। हम सब मुजरिम हैं और इसी में हम अपने गुनाह की पहचान हासिल करते हैं। रोमियो 3 बाब 19-20 आयत, अब हम जानते हैं कि जो कुछ शरीयत कहती है वो उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत हैं, ताकि हर मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के सामने जवाब दे ठहरे। क्योंकि शरीयत के कामों से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, क्योंकि शरीयत के वसीला से गुनाह की पहचान होती है। बस ईमान लाने से पहले हमारी जिंदगी के किसी मोड़ पर हम खुदा की शरीयत इसकी हिदायत को सुनते हैं। इसी वक्त हमें यह इदराक होता है कि हम अपने खालिक के सामने इसकी शरीयत तोड़ने के मुजरिम हैं। इसी वक्त हमें यह एहसास होता है कि हमने खुदा की शरीयत के पीछे चलने के बजाय गुनाह की शरीयत के पीछे जाना शुरू किया है। गुनाह की शरीयत तो खुदा की शरीयत की मुकम्मल जिद है। गुनाह की शरीयत, रोमियो 7 बाब 23 से 24 आयत, अगर मुझे अपने आज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे इस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे आज़ा में मौजूद है, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। हमारा जिस्म गुनाह की ख्वाहिश करता है, हमारा जिस्म खुदा की शरीयत से नफरत करता है। निजतन हम सब ने गुनाह किया है। रोमियो 3 बाब 9 से 13 आयत, बस क्या हुआ, क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर पेशतर ही ये इल्जाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मातहत हैं। चुनांचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। यहां सियाक व सबाक उन लोगों का है जो शरीयत के मातहत हैं, यानी गुनाह और मौत की शरीयत के मातहत, यानी ईमान से पहले कोई भी नेकी नहीं करता, क्योंकि जो चीज खुदा की नजर में नेक है वो सिर्फ उसके कलाम के पीछे चलना है। हम दिन भर वो काम कर सकते हैं जो हमें नेक लगे, लेकिन अगर हम ये काम खुदा के कलाम के मुताबिक चलने की नीयत से नहीं कर रहे तो हम ये सब कुछ गलत वजह से कर रहे हैं। हम ये सब कुछ अपनी मर्जी से अपने मकसद के लिए कर रहे हैं। हमारी राहें रास्तबाज नहीं है, हमारे खालिक की राहें रास्तबाज हैं। हमारी रास्तबाजी गंदे कपड़ों की मानिंद है, इसकी रास्तबाजी पाक और दुरुस्त है। गुनाह के नताइज होते हैं और उसका नतीजा मौत है। गुनाह और मौत की शरीयत, रोमियो 5 बाब 12 आयत, बस जिस तरह एक आदमी के जरिया गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के वसीला से मौत और यूं मौत सब इंसानों में फैल गई क्योंकि सब ने गुनाह किया। गुनाह के बारे में हम ये पैदाइश 2 बाब में पाते हैं। पैदाइश 2 बाब 16 से 17 आयत, और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा, तो बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकी और बदी की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो इसे खाएगा तो जरूर मर जाएगा। चूंकि इंसान ने नेकी और बदी की पहचान के दरख्त से खाया जो कि खुदा की तौरात के खिलाफ था, इसलिए हम सब मौत के लायक ठहरे। हमारा गुनाह मौत की तरफ ले जाता है। बाग अदन के बाद से हर गुनाह खुदा के कानून को तोड़ना मौत का बाइस बनता है। यही गुनाह और मौत की शरीयत कहलाता है। हम इस हकीकत के असीर हैं। रूमोहे 8 बाब 2 आयत, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यसू में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है। अब रूह की शरीयत हमें आजाद करती है। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम ये सीखें कि रूह खुदा की शरीयत के हवाले से क्या कहता है। रूह की शरीयत, रूह की शरीयत क्या है?
एक इब्रानी नुक्ता नजर से पूछें तो रूह की हिदायत किया है। आइए जानते हैं। पहला करनथियों 2 बाब 13 आयत। और हम उन बातों को इन अल्फाज में नान बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि इन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। चुनांचे ये हिदायत इंसान की तरफ से नहीं बल्कि रूह की तरफ से है, जो हमें हक की पहचान में बसीरत अता करती है। रूहानी बातें उनके लिए जो रूहानी है, तो रूहानी होने की तारीफ किया है। रोमियो 7 बाब 14 आयत। क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत रूहानी है और सच्चाई क्या है। ज़बूर 1:1-9 की 142 आयत। तेरी सदाकत अबदी सदाकत है और तेरी शरीयत सच्चाई है। तो रूह हमें खुदा की शरीयत पर चलने के लिए रहनुमाई अता करता है, जो कि सच्चाई है। इसी तरह यही वो बात है जो हमारे मसीह ने भी सिखाई। यूहन्ना 16 बाब 13 आयत। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से न कहेगा बल्कि जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आइंदा की खबरें तुम्हें देगा। ये कोई नई बात नहीं थी, अंबिया ने हमें बहुत पहले ही इसके बारे में बता दिया था। रूह हमें खुदा की शरीयत की तरफ ले जाएगा ताकि हम उसकी शरीयत पर अमल करें। हज़क़एल 36 बाब 26 और 27 आयत। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको इनायत करूंगा। और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। रूह की शरीयत और रूह की हिदायत हमें बताती है कि जब हम यही सुनते हैं कि खुदा की शरीयत सच्चाई है, तो ये हमें जिस्म की ख्वाहिशात से हटाकर खुदा की शरीयत की तरफ ले जाती है। ये वो लम्हा है जब रूह हम में दाखिल होता है तो हमें फौरन हसास होता है कि हम गुनाह और मौत की शरीयत के मातहत हैं। तब हमें मालूम होता है कि हम कैद और अपने गुनाह की गुलामी में हैं। जब हमें इस कैद का एहसास होता है तो हम रिहाई की तलाश करने लगते हैं। फिर हम अपने खालिक की तरफ नजात की राह के लिए देखते हैं। रूह सच्चाई की ख्वाहिश और आज़ादी की चाहत हमें हमारे खालिक पर ईमान कायम करने की तरफ ले जाती है और उसके अबदी बाइख्तियार और गैर मुतगय्यर कलाम पर ईमान लाती है। यही हमें ईमान की शरीयत तक ले आती है जो सुनने से आती है। रोमियो 10 बाब 17 आयत। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान की शरीयत। रोमियो 3 बाब 27-28 आयत। बस फखर कहा रहा इसकी गंजैश ही नहीं, कौन सी शरीयत के सबब से किया, अमाल की शरीयत से नहीं बल्कि ईमान की शरीयत से। चुनांचे हम ये नतीजा निकालती हैं कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है। ये तालीम ईमान की शरीयत वो है जिसकी हमें इताअत करनी है। रोमियो 1 बाब 5 आयत। जिसकी की मरिफत हमको फजल और रिसालत मिली ताका इसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबे हों। ईमान की शरीयत यह है कि अपने तर्ज फिक्र को खुदा के कलाम के मुताबिक ढाल लिया जाए। पौलुस इसे नया इंसान बनने से ताबीर करता है। अफिसियों 4 बाब 1 कि तुम अपने अगले चाल चलन की इस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकनजगी में पैदा की गई। ये वो लम्हा होता है जब हम नजात के मंसूबे में दाखिल होते हैं। ये बात काबिल गौर है कि ये सब कुछ इससे पहले होता है कि हम अमली तौर पर कुछ करें। अफिसियों 2 बाब 8-9 आयत। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, और ना ही अमाल के सबब से ताका कोई फख्र ना करे। हमारा ईमान अमाल से मुतय्यन नहीं होता बल्कि ईमान अमाल की तरफ ले जाता है और उन्हीं से जाहिर होता है। हमारा ईमान यह है कि खुदा का कलाम सच है और खुदा का कलाम वो किरदार है जिसके मुताबिक हमें ढलना चाहिए। बस ईमान अमाल की तरफ ले जाता है, ये नहीं कि अमाल ईमान की तरफ ले जाएं। अलावा अज़ीं इब्रानी ज़बान में ईमान के लिए लफ्ज़ ईमाना है। ये आम तौर पर किरदार के बारे में इस्तेमाल होता है, किसी की मुकम्मल भरोसामंदी और वफादारी बिलखुसूस खुदा की। ईमान खुदा की काबिल एतमाद ज़ात पर मुकम्मल इन्हिसार रखने वाला मुतहर्रिक रवैया है। इसका मतलब यह है कि ईमान इस वक्त जाहिर होता है जब हम अमली तौर पर भरोसा करते हैं, यानी हम अपने आप को हर हाल में इसकी निगहदाश्त में सौंप देते हैं। जब तक हम उसकी भरोसामंदी पर अमल न करें तब तक हमारे पास ईमान नहीं है।
हम सिर्फ अकायद का मजमुआ रख सकते हैं जिसे हम ज़बानी दोहरा सकते हैं, लेकिन एक फ़आल ताल्लुक मौजूद नहीं होगा। ईमान सिर्फ भरोसा करने के अमल में पाया जाता है, ज़बानी दावा में नहीं। इसराइल दावा करता था कि वो खुदा पर ईमान रखता है, लेकिन उनके अमाल इस बात का इनकार करते थे कि वो खुदा की मलकियत है। ये इसलिए था कि वो बेवफा थे। अगर ईमान खुदा पर भरोसा करने का अमल है तो फिर हम आ तो भरोसा करते हैं या नहीं करते। हम आ तो इस पर भरोसा करते हैं या फिर अपनी मर्जी से चलते हैं। यहाँ कोई दरमियानी हालत नहीं है। तो हमें ये ईमान कैसे हासिल होता है? खुदा इसे बख्शता है आजादाना फरावानी से और मुसलसल। खुदा की तरफ से रिश्ते में कोई चीज तुम्हें इस पर भरोसा करने से नहीं रोकती, हमें सिर्फ इसके मुताबिक अमल करना है। इसीलिए कलमे मुकद्दस में हमारे बातनी ईमान और उसके हमारे तर्ज़ जिंदगी में जाहिर होने के दरमियान एक निकाह राबता मौजूद है। इसका मतलब यह है रास्तबाजी वो चीज है जो दूसरों को नजर आती है और यह खुदा के कलाम से निकलती है जिसे हम सच मानते हैं। आसान अल्फाज में ईमान की शरीयत जिस पर हमें दिल से अमल करना है, जो हमें नया इंसान बनाती है, वही हमें रास्तबाजी की शरीयत यानी खुदा के कलाम पर अमल की तरफ ले जाती है जो काबिल मुशाहिदा होती है। रास्तबाजी की शरीयत रोमियो 1:17 आयत। क्योंकि इसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के वास्ते जाहिर होती है, चुनांचे लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। पौलुस महज नबियों का हवाला दे रहा था। हबकुक 2:4 आयत। देख जो घुमंडी है इसका दिल इसमें रास्त नहीं, लेकिन रास्तबाज अपने ईमान से जीता रहेगा। इसका मतलब है कि सच्चा ईमान जो पहले आता है हमेशा रास्त कामों के सबूत के साथ जाहिर होगा। एक सादा मिसाल यूं हो सकती है, फर्ज करें कोई आपसे कहे कि आपका घर कल फटने वाला है। चलिए फर्ज कर लेते हैं कि आप जिंदा रहना चाहते हैं और धमाके में नहीं मरना चाहते। अगर आप कहें कि आपको यकीन है कि आपका घर फटने वाला है, लेकिन फिर भी आप इसी घर में ठहरने का फैसला करें, तो क्या ये मंतकी बात होगी? ये हकीकी ईमान नहीं होगा। अगर आपको वाकई यकीन हो कि आपका घर फटने वाला है तो आप हरगिज इसमें ना रहेंगे। इसी तरह अगर आप वाकई खुदा के कलाम को सच मानते हैं तो आपके दिल में इस कलाम पर अमल करने की ख्वाहिश भी होगी। यकूब 2:14-26 आए। ए मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदे? क्या ऐसा ईमान इसे नजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ गर्म और सिर रहो, मगर जो चीज तन के लिए दरकार है वो उन्हें ना दे, तो क्या फायदा? इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ हमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। बल्कि कोई कह सकता है कि तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूँ, तो अपना ईमान बगैर अमाल के तो मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे दिखाऊंगा। तो इस बात पर नामान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते और थर थर्राते हैं, मगर ए निकम्मे आदमी किया तो ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। जब हमारे बाप अब्राहम ने अपने बेटे अजहाक को कुर्बानगाह पर कुर्बान किया तो क्या वो अमाल से रास्तबाज न ठहरा? बस तो ने देख लिया कि ईमान ने इसके अमाल के साथ मिलकर असर किया और अमाल से ईमान कामिल हुआ और ये नविश्ता पूरा हुआ कि अब्राहम खुदा बाप पर ईमान लाया और ये इसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। इसी तरह राहुब फाहिशा भी जब इस ने कासिदों को अपने घर में उतारा और दूसरी राह से रुखसत किया तो क्या अमाल से रास्तबाज न ठहरी? गरज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। इब्रानियों 11:1 आयत। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और इन देखी चीजों का सबूत है। कुछ वक्त निकाली और इब्रानियों 11 का बकिया हिस्सा पढ़े। ये एक के बाद एक मिसाल है इन लोगों की जो ईमान की वजह से अमल करते हैं, जो उनके ईमान का सबूत है। क्यों? क्योंकि ईमान हमारी जिंदगी में ऐसे अमल पैदा करता है जो खुदा के कलाम के मुताबिक होते हैं, पूरे कलाम के मुताबिक। रोमियो 3:27-28। बस फखर कहा रहा इसकी गंजैश ही नान कौन सी शरीयत के सबब से? किया अमाल की शरीयत से नहीं बल्कि ईमान की शरीयत से। चुनांचे हम ये नतीजा निकालते हैं कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है। याद रखी, शरीयत का मतलब महज हिदायत तालीम होता है। पौलुस सिखा रहा है कि अगर हम ईमान की तालीम की पैरवी करें तो हम उसके वसीला से रास्तबाज ठहरते हैं। इसके बरक्स सिर्फ अमाल की तालीम हमें रास्तबाज नहीं ठहरा सकती। तो ईमान की तालीम क्या है? तालीम यह है कि ईमान रखो और तुम नजात के लिए रास्तबाज ठहराए जाओगे। अब ये सवाल उठता है, ईमान किस पर?
इसका जवाब पिछली आयत में मौजूद है। रोमियो 3 बाब 26 आयत। बल्कि इसी वक्त इसकी रास्तबाजी जाहिर हो ताकि वो खुद भी आदिल रहे और जो यसू पर ईमान लाए इसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। यसू पर ईमान रखने वाला, हमारा ईमान यसू पर होना चाहिए। फिर उसका क्या मतलब है? यसू पर ईमान रखने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम यकीन करें कि वो मौजूद था? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम यकीन करें कि वो मर गया था? नहीं, यसू खुदा का मुजस्सम कलाम है। यसू पर ईमान रखने और उस पर ईमान लाने का मतलब है खुदा के कलाम पर ईमान रखना और उस पर ईमान लाना। यूहन्ना 1 बाब 14 आयत। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर है कर हमारे दरमियान रहा और हमने इसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यसू मसीह पर ईमान रखने का मतलब यह है कि हम यकीन करें कि खुदा का कलाम सच है और ये कि यही जिंदगी गुजारने का रास्ता है। इसी ईमान में हम रास्तबाजी पर अमल करने की ख्वाहिश पैदा करते हैं। खुदा की शरीयत पर अमल ही दूसरों के लिए हमारे ईमान का सबूत है। यूहन्ना इस बात को कई बार बहुत उम्दगी से बयान करता है। पहला यूहन्ना बाब 29 आयत। अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज है तो ये भी जान लो कि जो कोई रास्तबाजी पर अमल करता है वो इसी से पैदा हुआ है। पहला यूहन्ना 3 बाब 7 आयत। ई बच्चों, कोई तुम्हें धोखा ना दे, जो रास्तबाजी पर अमल करता है वही रास्तबाज है जैसे कि वो रास्तबाज है। पहला यूहन्ना 3 बाब 10 आयत। इसी से जाहिर होता है कि कौन खुदा के फर्जंद हैं और कौन इब्लिस के। जो कोई रास्तबाजी पर अमल नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं करता। यूहन्ना यही ख्याल इस अंदाज में पेश करता है कि हमारी फरमाबरदारी हमारे ईमान का सबूत है। पहला यूहन्ना 2 बाब 1 से 6 आयत। ए मेरे बच्चों, में ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं ताकि तुम गुनाह न करो। बस यूहन्ना ये जाहिर कर रहा है कि इसकी ख्वाहिश ये है कि हम गुनाह न करें, और चूंकि गुनाह खुदा की शरीयत को तोड़ना है इसलिए वो दरअसल ये कहना चाहता है कि इसकी ख्वाहिश ये है कि हम खुदा की शरीयत पर अमल करें। लेकिन अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारी शफात करने वाला मौजूद है, यानी यसू मसीह रास्तबाज। वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और न सिर्फ हमारे बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। इसका मतलब यह है कि जब हम गुनाह करते हैं तो हमारा गुनाह फजल के वसीला से ढांप दिया जाता है यसू मसीह की रास्तबाजी के जरिए। ताहम ये फजल उन्हें दिया जाता है जो खुदा के अहकाम को मानने की ख्वाहिश रखते हैं, ताकि वो उन्हीं अहकाम पर चलें जिन पर हमारा मसीह चला था, यानी सब खुराक से मुताल्लिक हिदायत, सब कुछ। पहला यूहन्ना 2 बाब 3 से 6 आए। और इसी से हम जानते हैं कि हम इसे जान गए हैं अगर हम उसके अहकाम पर अमल करें। जो कोई कहता है कि मैं इसे जानता हूं मगर उसके अहकाम पर अमल नहीं करता वो झूठा है और इसमें सच्चाई नहीं। लेकिन जो उसके कलाम पर अमल करता है इसमें वाकई खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। इसी से हम जानते हैं कि हम इसमें हैं। जो कोई कहता है कि वो इसमें कायम है, इसे चाहिए कि वैसे ही चले जैसे वो चला था। ये ख्याल कि हमारे अमाल अफरमाबरदारी हमारे ईमान का सबूत है, ना तो पौलुस ने ईजाद किया और ना ही यूहन्ना ने। हम पहले ही ये बात नोट कर चुके हैं कि अंबिया ने सिखाया कि रास्तबाज ईमान से जिंदा रहेगा। ताहम यसू मसीह ने भी इन यही बात सिखाई। मत्ती 12 बाब आयत 33। आ तो दरख्त को अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा कहो, या दरख्त को बुरा और उसके फल को भी बुरा कहो, क्योंकि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। यसू ने सिर्फ अच्छे फल पैदा किए बतौर हमारे नमूने, और इस नमूने में इसने सिर्फ खुदा की शरीयत की पैरवी की, मसीह की शरीयत। पहला करनथियों 9 बाब 21 आयत। बेशर्रा लोगों के इल्मी बेशर्रा बना ताका बेशर्रा लोगों को खींच लाऊं, अगरचे खुदा के नजनियत बेशर्रा ना था बल्कि मसीह शरीयत के ताबना था। ये वो लम्हा है जब पौलुस बात कर रहा है कि वो दूसरों को बेहतर तौर पर समझाने के लिए उनके मकाम पर खुद को रखता है। पौलुस वाज़े करता है कि वो खुदा की शरीयत से बाहर नहीं बल्कि मसीह की शरीयत के मातहत है। लिहाजा वो बैक वक्त खुदा की शरीयत और मसीह की शरीयत के तहत है। अलिफ इसका मतलब किया है। ये दोनों एक ही चीज है। यहां पौलुस वाज़े करता है कि जो हिदायत हमारे मसीह ने हमें दी वही खुदा की शरीयत है। यसू ने सिर्फ खुदा की शरीयत पर अमल किया और वही हमारा नमूना है, और हमें इसी राह पर चलना है जिस पर वो चला। लिहाजा मसीह की शरीयत पर चलना खुदा की शरीयत पर चलने के मुतरादिफ है। हम अब तक पौलुस की 7 शरीयतों का जायजा ले चुके हैं। एक खुदा की शरीयत के रोमियो 3 बाब आयत 31, 7 बाब आयत 22।
25 8 बाब 7 आयत। 2 गुनाह की शरीयत रोमियो 7 बाब 23 25 आयत। 3 गुनाह और मौत की शरीयत रोमियो 8 बाब 2 आयत। 4 जिंदगी के रूह की शरीयत रोमियो 8 बाब 2 आयत। 5 ईमान की शरीयत रोमियो 3 बाब 27 आयत। 6 रास्तबाजी की शरीयत रोमियो 9 बाब 31 आयत। 7 मसीह की शरीयत पहला करनथियों 9 बाब 21 आयत। ये एक अमल और तरतीब है जिसके मुताबिक उन कवानीन की ये तरतीब हमारे ईमान की जिंदगी में जाहिर होती है। खुदा की शरीयत हमारे खालिक की तरफ से हमारी रहनुमाई के लिए दी गई ये हिदायत हैं। हमारा जिस्म उन हिदायत की पैरवी न करने की ख्वाहिश रखता है, इसी को गुनाह की शरीयत कहा जाता है। गुनाह मौत की तरफ ले जाता है। हम सब ने गुनाह किया है, हम सब मौत के मुस्तहिक थे। इसे गुनाह और मौत की शरीयत कहा जाता है। जब हम गुनाह और मौत की शरीयत के मातहत होते हैं तो हम बेखबरी में कैद में होते हैं और अबदी मौत के वादे में फंसे होते हैं। रूह हमें सच्चाई बताती है और हमें खुदा के कलाम की अबदी जिंदगी की तरफ रहनुमाई करती है। इसमें हम पहचानते हैं कि हम गुनाह और मौत की शरीयत की कैद में हैं। हम समझते हैं कि हमें खुदा के कलाम पर ईमान रखना है, इस पर भरोसा करना है और पूरी तरह इसके कलाम के ताबे हो जाना है। यह खुदा के कलाम की पैरवी की एक नई ख्वाहिश है जो जिस्म की ख्वाहिश के बरखिलाफ है, जो खुदा के कलाम के मुखालिफ है। इस ईमान में हम रास्तबाजी पर अमल करते हैं। ये वही रास्तबाजी है जिस पर हमारे मसीहा ने ईमान में चलते हुए अमल किया। इसे मसीह शरीयत कहा जाता है। अब जबकि हमने पौलुस के मुताबिक उन 7 कवानीन का जायजा ले लिया है तो हम पौलुस के हर खत के मुताले के लिए तैयार हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अक्सर उन 7 कवानीन शरीयतों की तरफ रुजू करेंगे जो हमें दिए गए सियाक को सबक फराहम करते हैं, और हम देखेंगे कि ज्यादातर मौके पर पौलुस सिर्फ लोगों को उन कवानीन की दुरुस्त तरतीब तसलसल को समझाने में मदद दे रहा है, न कि ये तजवीज दे रहा है कि इनमें से कोई कानून शरीयत मनसूख हो गई है या बदल गई है। लिहाजा इन 7 शरीयतों को जहन में रखें जब हम पौलुस के तजाद की सीरीज के हिस्सा 5 की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम रोमियो के खत का तफसीली मुताला करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये तालीम आपके लिए बाइसी बरकत रही है, और याद रखें हर चीज को परखते रहें। शालूम येवा खुदा आपको अपने पूरे कलाम पर चलने के लिए बरकत दे। आमीन। अगर आपको मुतालहा का ये सिलसिला पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चैनल का नाम है पास्टर शहजाद चार्ल्स बाइबल इंस्टीट्यूट।